My name is Smith Patel. This is my first YouTube video. Today I will talk about left anterior fascicular block. So let's start with the anatomy. This is the right bundle branch and this is the left bundle branch, which is divided in anterior superior division and posterior inferior division. So anterior superior division is more vulnerable compared to the other. Why? Because first it is long and thin. Other, it has only single blood supply, where PID has dual blood supply. AFD and RBB has same blood supply of left anterior descending artery. So many times we see combined RBBB plus left anterior fascicular block. So this is the first basic instruction. So suppose this is this enter AFD is blocked, then how current will pass? Then the first of all it will go like this and this. So you can see that this blue vector, which represent the initial deflection in QRS complexes. Like suppose this is the R wave in lead 2, 3 and AVF, and this is a Q wave. This blue vector is Q wave for lead in lead 1 and AVL. So generally what happens, generally this vector initial vector of QRS is leftwards, but in this block this becomes the rightward. So we will see a positive R wave in 2,3 AVF and negative Q wave in 1 and AVL compared to the normal. And later what happens? This left-sided ventricle is depolarized by the current flowing from this to this. So finally the major vector, so the major part of depolarization is red. So it will so you can understand this will left axis deviation. This is how left axis deviation occurs in left anterior fascicular block. So I will say the minimum criteria for to diagnose LAFB. So see, first the QRS duration is almost normal or minimally increased. So you can see compared to the left bundle branch block, it is more than 120 millisecond. But here you can see although it is increased, but it is never more than 110 millisecond. So we can see 1, 2 and a little bit and a two and a half small square, so it is less than 120 milliseconds. And QRS axis deviation, so first criteria, QRS duration is normal, and second criteria, left axis deviation. So I hope you all know how to determine axis of determine QRS axis. So let's see this first this in lead 1, this is the positive, and lead AVF, this is the negative. So you can do by the square system that it will fall in this QRS axis will fall in this area. So there is a left axis deviation under left axis deviation. And the third criteria is small RS complex in a lead 2, 3 AVF. So let's just say lead to, you can see positive R wave, which I have mentioned as a blue vector, and then a negative big S wave. So it is small r and big S complex in lead 2, 3 AVF. You can understand how this occurs, as a blue vector gives a positive R wave, and the red big vector gives negative S wave. So in lead 2, 3 and AVF, this is how it occurs. And opposed to the left sided leads, which are 1 and AVL, the first complex would be negative and the second would be positive. So you can see this is the very small Q wave seen it by the blue vector, and this is the big R wave seen by the red vector. So it lead 1 and AVL. You can see this small q wave, you cannot tell every time this is the good, but always see. This is the very common thing in ECG.
you can see positive deflection very well, but you cannot see negative deflection so nicely if it is the very small. So always see R wave, R small positive small R wave compared to the Q small Q wave. ओके, तो और आगे मैं दूसरे क्राइटेरियाज के बारे में बात करूँगा। तो फर्स्ट हो गया लेफ्ट क्यू आर। तो अब मैं डिटेल में जाऊँगा कि लेफ्ट इंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक में कैसे होता है। तो फर्स्ट तो लेफ्ट एक्सिस से डेविएशन की बात हमने कर दी। फिर ये इनिशियल आर वेव पॉजिटिव कैसे आता है उसके बारे में भी बात कर ली। और तीसरा होता है इंट्रिंसिकोइड डिफ्लेक्शन। और जो इंट्रिंसिकोइड डिफ्लेक्शन क्या होता है कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के शुरू होने के बाद जो मैक्सिमम पीक तक पहुंचता है उसका टाइम कितना होना चाहिए। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के टाइम को इंट्रिंसिकोइड डिफ्लेक्शन कहते हैं। सो it is generally it is increase in the left axis left anterior fascicular block। so जो ये 45 मिलीसेकंड से ज़्यादा होता है तो आप देख सकते हैं कि ये एक और दो और ये दो स्मॉल स्क्वायर है, इसलिए ऑलमोस्ट 70 to 80 मिलीसेकंड जितना हो गया है। तो नॉर्मली ये 45 मिलीसेकंड से कम होता है, पर यहाँ ये 70 से 80 मिलीसेकंड तक हो गया है। तो ये एक ध्यान रखने वाली बात है, इंट्रिंसिकोइड डिफ्लेक्शन ऑफ क्यू आर एस। देन कई बार आप क्यू आर एस में स्लरिंग भी देख सकते हैं कि यहाँ इतना क्लियर नहीं है, पर मतलब जब आप देखते हैं कि यहाँ उसका यहाँ जो डिपोलराइजेशन होता है वो एनो वो मतलब ट्रांसवर्सली नहीं, जैसे नॉर्मली वेंट्रिकल में ट्रांसवर्सली होता है और वैसे नहीं होता, ये लॉन्जिट्यूडनली होता है। इसलिए ये स्लो होगा और इरेग्युलर होगा। इसलिए कई बार इसमें मतलब आखिरी डाउन स्लोप होता है उसमें स्लरिंग देखी जा सकती है। सो और आप देख सकते हैं कि जब एक्सिस लेफ्ट एक्सिस डिविएशन होता है उसके साथ साथ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता है। इट इज़ तो आप देख सकते हैं कि ये सभी सभी एक्सिस में नॉर्मल से कहीं कहीं ज़्यादा मतलब हुआ है, मैग्नीट्यूड काफ़ी बढ़ गया है। फिर अब ये तो जनरल क्राइटेरिया हो गए, और एक हिंट देने वाली बात ये है कि जल्दी आपको कैसे पता चले कि ये जनरली लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक है। तो इसके एक और अच्छा जो क्राइटेरिया नहीं, पर एक और अच्छा हिंट होता है कि जनरली हम V5 V6 में देखते हैं कि पॉजिटिव डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, पर हम यहाँ देख रहे हैं कि मतलब यहाँ ऑलमोस्ट इक्विफेजिक जैसा हो चुका है V5 और V6 में। इसका रीज़न ये है कि जब ये लेफ्ट एक्सिस डिविएशन होता है तो वो ऑलमोस्ट V5 और V6 के मतलब वो कहते हैं कि पैरेलल हो जाता है, इसलिए हम V5 और V6 में इक्विफेजिक देख सकते हैं। बाकी हम जनरली QRS से मतलब जनरल V6 से कंपेयर करेंगे तो उसके कंपेयर में Q वेव लॉस्ट हो जाएगी, R वेव आर वेव कंपेयर में छोटी होगी और एस वेव कंपेयर में ज़्यादा होगी। आप आसानी से याद रख सकते हैं कि और ऑलमोस्ट V5 V6 इक्विफिजिक हो जाता है। और हम टी वेव के बारे में बात करें तो जनरली आप देख सकते हैं कि टी वेव एक्सिस और क्यू आर एस एक्सिस के 60 डिग्री के आसपास ही होती है। मतलब हम क्यू आर एस टी एंगल की बात करेंगे तो वो विदिन 60 डिग्री होगा, पर अब यहाँ टी एंगल पर यहाँ टी वेव ऑपोजिट डायरेक्शन में टी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जो जनरली मतलब यहाँ एस वेव बहुत जो डायरेक्शन में है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में टी वेव है। जैसे कि लीड 2 में भी देखिए, अब क्यू आर एस एक्सिस के कंपेयर में टी वेव एक्सिस ऑपोजिट हो जाती है, सो क्यू आर एस टी एंगल बढ़ जाता है। और जनरली और हाँ, तो और मैंने जब जैसे कि कहा कि लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के साथ कई कई बार देखा जाता है, क्योंकि वो दोनों का ब्लड सप्लाई सेम है। तो जब भी ये दोनों साथ में होते हैं तो मोर्टालिटी बढ़ जाती है और कंप्लीट एवी ब्लॉक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आपको जनरली अनकॉम्प्लिकेटेड
अनकॉम्प्लिकेटेड लेफ्ट एंटीरियर वेसिकुलर ब्लॉक में मतलब क्यू आर एस एक्सिस -60 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ती, पर और आपको अगर मतलब डाउट हो तो आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड लीड 3 में मिनट स्टैंडर्ड लीड स्टैंडर्ड लीड 3 में क्यू आर एक्स एक्सिस 15 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा के विदिन 15 स्मॉल स्क्वायर के अंदर होती है। वो तो वो मतलब अनकॉम तो आइसोलेटेड लेफ्ट एंटीफेसिकुलर ब्लॉक है, और अगर इससे ज़्यादा हो तो आप हाई ग्रेड LAFB या फिर लेफ्ट एसोसिएटेड लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो था और मैंने कंटिन्यूसली रिकॉर्ड किया है, सो तो शायद बोलने में भी कई मिस्टेक्स हो गई होंगी। तो प्लीज़ आप बताइएगा, ये कमेंट्स में बताइएगा कि कोई फैक्चुअल मिस्टेक हो गई हो तो। और थैंक यू।